Okay, so start with another session. Sound is not shown here such कि क्या वजह हो सकती है, साउंड क्यों नहीं आ रही, ये आ रही है यहाँ पे डिफेक्ट नहीं हो रही। रीस्टार्टिंग में तो टाइम लग जाएगा। स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा हमें अभी। या चले वी टेक द रिस्क, आई थिंक साउंड होनी चाहिए अब, क्योंकि और कोई इशू तो नहीं है बस नॉट, और अगर हुआ तो फिर लेट अस फिनिश ऑफ। जो मेरे ख्याल में हमारा ये वाला था ना पोर्शन, इसको हम एक दफ़ा कर लेते हैं, 2 स्लाइड्स हैं, और फिर आगे फिर नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं उसको ताकि फ्लो हमारा जो इफेक्ट ना हो। सो आई जस्ट cover these 2 slides in this time period. Let's see what we have. Okay, so in fact from the knowledge which we did just now, we saw that we can do number of things in जिसके अंदर हमने convolution का phenomena especially देखा। हमने कहा जी ओके, ये सिग्नल x जो है जब भी किसी सिग्नल किसी सिस्टम पे इनपुट पे आता है तो हमारे पास आउटपुट में y आना चाहिए। So y can be achieved by doing the convolution of x with h. This was in the time domain. Convolution operation, as we saw, is a difficult operation, so we go for the Fourier transform. If we take the Fourier transform on both sides, then y would be equivalent to x multiplied by h. The convolution is replaced by multiplication in case of the Fourier transform or Fourier domain, so things are easier to compute. That is why something shown over here is we have the h of the receiver filter. Our signal s comes in, then the output would be y, which would be composed of s times h. This is Fourier. And if I want to go back towards the y of t, that is I want to get the time domain representation, then I have to take the Fourier inverse, which would be equivalent to integral of h times s into e power j 2 pi f of t d of f, as shown over here. This is the inverse Fourier transform. और जो चीज़ मिल रही है वो मुझे फिर आउटपुट जो भी है वो सिग्नल ही है ना, उस सिग्नल को मैंने AIT कह दिया। सो दिस इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल ऑब्टेन्ड बाय डूइंग दैट ऑपरेशन। सो आई कैन से जी S of f इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, H of f इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, S जो है वो सिग्नल का फोरियर है, H जो है वो सिस्टम के रिसीवर फिल्टर का फोरियर है, एंड देन वी आर गोइंग टू इनवर्स फोरियर टू गेट द सिग्नल कॉम्पोनेंट। Here I am getting I am doing it parts one by one, because I know that my S over n is nothing but AI square by sigma naught square. This is the signal component, this is the noise component. So I go towards the noise component now. In fact, what we can do, we can say what we can do that we have say I insert a slide over here. Once we have a system, that system is H, we have the X, we have the Y, and these are the magnitudes, right? Remember, these are the magnitudes, because Fourier transform जब आप लेते हैं h of e j omega जब आप compute करते हैं, this is a complex number. So complex number has got a magnitude and a phase. So I am interested into the magnitude at the moment. So y magnitude is h magnitude times x magnitude. So if I get the y magnitude, this would be equivalent to x magnitude times h magnitude. If I square both sides, then this would be squared, this would be squared. This would be giving me now the energy in the signal, because squaring gives me the energy or the power of the signal, right? We define the power of any signal as power spectral density. PSD आपने नाम सुना होगा. PSD is in fact nothing but it is represented as sigma x of f, and this is the magnitude of x of f square. सिग्नल के
फोरियर डोमेन के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करते हैं तो वी गेट दी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, बिकॉज इट गिव्स मी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्नल along the frequency axis and the signal energy in fact, because what we are getting over here that this magnitude is x of f magnitude square. So ये मुझे जो चीज़ दे रही है ये पावर दे रही है along the frequency. तो distribution of power along the frequency gives me the power spectral density, right? So power spectral density को हम इस तरह से represent करते हैं या इस तरह से लिखते हैं. इसका एक और नाम भी होता है, हम इसको gx of f भी कह सकते हैं. In fact, there is a difference between the power spectral density and energy spectral density. As the name suggests, once we have the power signals, for the power signals, we go and compute the power spectral density because we cannot compute the energy. Whereas for the energy signals, we go and compute the energy spectral density. The ultimate aim is to compute the spectral density. Spectral density is the square of the signal, because square of the signal is giving me the energy or power. So accordingly, ESD or PSD are computed and they are nothing but the square of the magnitude spectrum, right? So अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर स्क्वायर करता हूँ y square is equal to x square is equal to h square, so I can say कि इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल रहा हूँ आउटपुट प्रोसेस की y of f, because this y of f is the output signal square which can be computed as the power spectral density of input signal times the spectrum of the filter which is being used, जिसके दरमियान से गुजर रही है. यानी if I have a system जिसका impulse response या इस मौके पे h of f जो है वो मुझे मालूम है और उसको मैं एक सिग्नल देता हूँ जिसकी इनपुट स्पेक्ट्रल डेंसिटी gx of f है, तो I can go and compute the gy of f based on this relationship. That इसका स्क्वायर कर लेंगे हम और जिसके स्क्वायर को जब g of x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगी वो मेरे पास आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी या आउटपुट PSD होगी या आउटपुट सिग्नल की PSD होगी, जिसको इस तरह से लिखा हुआ है हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में. ठीक है. सो अल्टीमेटली अब यहाँ पे हम इसमें इंटरेस्टेड है कि जी नॉइज़ अगर सिस्टम में इन हो रही है तो नॉइज़ की एक पावर है, इंटरनल पावर है, उसको मैं सिग्मा नॉट स्क्वायर कह सकता हूँ. जब सिस्टम से गुजरेगी तो वो सिग्मा नॉट स्क्वायर जो है उसको अब चेंज होना चाहिए, वो आउटपुट है सिस्टम की, तो उसको मैं उस मौके पे gy of f कह सकता हूँ और इसको मैं gx of f कह सकता हूँ. मेरा एम ये है कि इस gy of f को कम होना चाहिए, आउटपुट पावर कम होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंगली दैट कैन बी computed. If I go back to the equation here we have something shown over here. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा h of f का स्क्वायर भी नज़र आ रहा होगा और n naught by 2 नज़र आ रहा होगा. n naught by 2 जो है this is the power spectral density of white noise. White noise is a phenomena. White noise ये होता है कि ऐसी noise जो कि हर frequency पे exist कर रही हो. White noise is a frequency or a noise which exists at all frequencies. So white noise की जो PSD होती है, power spectral density होती है, it's constant and it's assumed as n naught by 2, right? तो यानी ये कि अगर मैं इसको if I take another slide, आप लोगों के मीटर ऑफ तो नहीं हो गए अभी इस टाइम पे? मीटर ऑफ लग रहे हैं मुझे, आंसर का मीटर ऑफ लग रहा है. चले इस थोड़ा सा इसको मैं करूँ फिर आई विल रिपीट इट इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि एक चीज़ जो है ना वो एटलीस्ट एक अपने कंप्लीटनेस की तरफ तो चली जाए ना. आई टोल्ड दिस दैट हमारे पास जो वाइट नॉइज़ होती है, वाइट नॉइज़ WHIT, वाइट नॉइज़ इज़ अ नॉइज़ एज द नेम सजेस्ट कि इट्स वाइट. वाइट मीन्स कि all the wavelengths, all the frequencies are there. White light is composed of all the colors. So white noise means a noise which exists at all frequencies. So अगर मैं frequency axis के ऊपर इसको plot करूँगा तो इसकी existence constant होगी और इसकी value n naught by 2 होगी. ये इसकी basically power है. तो I am just saying कि जी ये g of n of f है, ठीक है, जो कि exist कर रही है at all frequencies. ये इसकी PSD है, power spectral density of the white noise है. It exists at all time, right? So इसकी अगर इसको मैं एनर्जी निकालने जाऊँ इसकी, तो आई कैन गो इंटीग्रेट दिस g of n of f ओवर द टाइम, ओवर द फ्रीक्वेंसी इन दिस केस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो चूंकि ये हर फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी पावर जो है इन्फिनिटी हो जाएगी. पावर ऑफ द नॉइज इज इन्फिनिटी. अभी जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि अगर मैं इस तरह की नॉइज़ को एक सिस्टम पे इन करता हूँ तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने
उसको मैंने यूज़ करना है एस ओवर एन में, यहाँ पे वो चीज़ यूज़ होनी है। हम ये अज्यूम करते हैं कि जी हमारी नॉइज़ जो थी वो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ थी, रिमेंबर एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़। सो वाइट नॉइज़ मीन्स कि ये इस तरह की नॉइज़ है जो कि हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, हर फ्रिक्वेंसी में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका जो g ऑफ x ऑफ f यानी इनपुट पे जो, मैं अगर x को नॉइज़ कहूँ इस मौके पे, x नॉइज़ है, इनपुट नॉइज़ है, दिस इज इक्वल टू n0/2। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन gy ऑफ f के आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगी, और उसको मैं कम करना चाहता हूँ ना, तो मैं उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से पहले तो कंप्यूट तो करूँ। वो ये मुझे बताता है कि जी y ऑफ f का जब स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होता है x ऑफ f के स्क्वायर के टाइम्स ऑफ h ऑफ f के स्क्वायर के, राइट। और जो भी चीज़ निकलेगी वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगी, उसको हम कंप्यूट करेंगे इनटू द टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में वो वेरिएंस के बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, ठीक हो गया। और उसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से। अगेन आई हैव टू टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस सिग्नल। सो इट मीन्स कि अब मैं अगर इसमें if I add a slide here, so I say okay, हमने कहा कि जी मेरे पास जो जी वाई ऑफ एफ है, आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, वो बराबर है इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी टाइम्स एच ऑफ एफ स्क्वेयर, एंड आई एम इंटरेस्टेड इनटू इट्स inverse Fourier transform. I am interested in g of t, right? So that can be obtained if I take the inverse Fourier of g of y of f, right? So अभी हम निकालते हैं इस चीज़ को कि कैसे निकलेगा. Now I know number of things. I know this g of x of f is n0/2 because this is the input power spectral density. h of f मुझे पता है, and I want to go back to compute the sigma naught of n. ये निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है. So that would be equivalent to कि मैं इंटेग्रल अप्लाई करूंगा, n0/2 is there, h of f is there, and I go back from the frequency domain to the time domain. So accordingly मैंने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक्सप्रेशन भी अप्लाई करनी है. Then I will be able to get the PST of output noise in the time domain, which will be used in s over n, जिसमें s निकाल चुका हूँ मैं, n चाहिए था मुझे. So it means if I go back and show you the slide here, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है. It's the same thing. I have gone back from the, मैंने यहाँ पे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, and I am going to obtain the noise power spectral density in the time domain. तो वो इसके बराबर आ जाती है. ये g of x of f है, और ये जो आपके पास h of f का स्क्वायर है, और ये कन्वर्ट करने हैं from the Fourier domain to the time domain. So you are into the output power spectral density of the noise. और यहाँ पे उन दोनों को डिवाइड कर दिया. फिर ये जो चीज़ थी ऊपर लिखी हुई थी और जो नीचे चीज़ लिखी हुई है वो आपकी सेकेंड कंपोनेंट है. इन दोनों को आपने अब सॉल्व करना है सो दैट द एस ओवर एन कैन बी मैक्सिमाइज्ड. दैट इज द एम, राइट. और उसके मैक्सिमाइजेशन के लिए नाउ देयर आर स्टेप्स. उसके लिए क्या चीज़ नंबर 1 है कि जी शॉर्स इनइक्वालिटी यूज़ होती है. शॉर्स इनइक्वालिटी ये बताती है कि अगर दो सिग्नल्स, दो कंपोनेंट्स, दो फोर्सेस, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसका आप कंबाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर कर रहे हो, और अगर आप अलग अलग करें दोनों को और अलग अलग करके मल्टीप्लाई करें, तो वो जो वैल्यू होगी वो इस सिंगल स्टेप से या तो ज़्यादा निकलेगी या उसके एटलीस्ट बराबर होगी, कम नहीं होगी उस. आई मीन टू से कि अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास एक इंटेग्रल मैं करना चाह रहा हूँ और से आई टेक कि मेरे पास से दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनका स्क्वायर कर लिया. और अब मैं करता हूँ जी कि मैं ए का अलग से स्क्वायर करता हूँ, बी का अलग से स्क्वायर करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं इन दोनों रिजल्ट्स को देखता हूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा. बाज़ औक़ात ये बड़ा होगा किसी खास केस में, बाज़ औक़ात और इक्वल होगा, छोटा नहीं होगा कभी भी इनसे. ये सेम चीज़ यहाँ पे शॉर्स इनइक्वालिटी डिफाइन करती है. दे आर फॉर द टू डिफरेंट फंक्शंस नाउ, नॉट फॉर द मैट्रिसेस. तो मेरे पास यहाँ पर एक एस है और एक एच है, उन दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने क्या करना है, आई वुड लाइक टू गेट कैंसिल दिस एच ऑफ एफ वुड बी कैंसिल. यहाँ पे देखो एच ऑफ एफ नजर आ रहा है, स्क्वायर भी है, तो मैं इसका इंडिविजुअल स्क्वायर कर लूँ, एच ऑफ का इंडिविजुअल स्क्वायर कर लूँ और एक को कैंसिल कर दूँ, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी. सो दैट इज द एम ओवर हियर. व्हाट वी डू, we define one function as the complex conjugate of the second function. ये देखें यहाँ पे आ जाइए. ये वो ऊपर वाले न्यूमरेटर का फंक्शन है, इसको मैंने 1 और 2 में डिवाइड कर लिया.
ठीक है, और दोनों को जब अलग अलग लिखेंगे तो ये एच ऑफ एफ का स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले एच ऑफ एफ स्क्वायर के साथ, और जो n0/2 नीचे था वो ऊपर आएगा तो 2/n0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट गोज टू 1 बिकॉज ई पावर जे थीटा को जब भी आप मैग्नीट्यूड करते हैं इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस गोज टू 1। ठीक है, क्योंकि ई जे थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और इसको जब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना हो तो आप दोनों एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, इन दी रेडिकल साइन कर देते हैं, तो वो 1 हो जाता है। तो दैट इज वाई दिस थिंग इज वैलिड हेयर। तो इसलिए दूसरे फंक्शन में वो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एस ऑफ एफ नज़र आ रहा है। तो जब इसको आप रिप्लेस करेंगे ऊपर, इफ आई गो बैक अगेन, लेकिन यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एस ऑफ एफ, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, n0/2 2/n0 के बराबर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी जो यहाँ पे लिखी गई, एस ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू 2/n0 इंटेग्रल ऑफ एस ऑफ एफ स्क्वायर। मेरा एम क्या है कि ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू शुड बी मैक्सिमाइज्ड, क्योंकि ये सिग्मा ऑफ एन जो है इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये वैल्यू देखें ना, क्योंकि मैंने जब शॉर्ट्स इनइक्वालिटी डाली है, उस इनइक्वालिटी की वजह से जो ऊपर वाला इक्वल का साइन था वो अब शिफ्ट हो गया इनटू लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इधर मैंने रिप्लेस कर दी वैल्यू। तो अब मैं चाहता ये हूँ कि जी इसको मैक्सिमाइज करना है मैंने नेक्स्ट स्टेज में, सिंप्लीफाई तो कर लिया, नाउ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस थिंग। उस मैक्सिमाइजेशन के लिए नाउ देयर आर सम स्टेप्स जो हम फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी आई एम श्योर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, और जब समझ नहीं आ रही तो फिर मैं समझाऊँ क्यों, जब आपको समझ नहीं आ रही है तो we'll discuss this in later class कि इसको किस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, so I'll leave it here. I'll try to keep these slides intact. ठीक है, इसको भी मैं स्टॉप